السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ عادل آباد میں کانگریس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ زوروں سے جاری ہے۔ عادل آباد میونسپل سابق وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کی قیادت میں عادل آباد ضلع قریشی تنظیم کے صدر مسعود قریشی اور نائب صدر ایوب قریشی کے ہمراہ ٹاٹی گڑا اور شانتی نگر سے بڑی تعداد میں قریشی برادری کے لوگوں نے عادل آباد کانگریس پارٹی اسمبلی انچارج کندی سنواس ریڈی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کندی سنواس ریڈی کی موجودگی میں اور پارٹی کھنڈوا پہناتے ہوئے سب کا پارٹی میں استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر وارڈ نمبر 35 انچارج عتیق الرحمان، محمد رفیق، شیخ منصور، لنگنا اشوک کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ ہمارا عادل آباد ڈسٹرکٹ کے قریشی سنگم ممبرز کانگریس پارٹی میں پرنسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی صاحب کے نیترتو میں آج کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے سب کو تالیوں سے کانگریس پارٹی میں بہت بہت سواگت ہے۔ تن من دھن سے آپ کا سواگت ہے کانگریس پارٹی میں۔ کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے عادل آباد ڈسٹرکٹ قریشی سنگم پریزیڈنٹ مسعود قریشی جی اور ایوب قریشی جی، عادل آباد ڈسٹرکٹ قریشی سنگم وائس پریزیڈنٹ اور احمد قریشی جی، آپ کو تالیوں سے کانگریس پارٹی میں سواگت کیجیے۔ ویلکم کانگریس پارٹی میں، آپ کو بہت بہت سواگت۔ آپ اور بھی ہمارا بھائی لوگ کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے، آپ کو بہت بہت دھنیہ واد۔ غریب رہتا وہاں کانگریس پارٹی رہتا، جہاں ایس سی مائنارٹی BC رہتا، جہاں غریب رہتا وہاں کانگریس پارٹی رہتا۔ کانگریس پارٹی اپنی پارٹی ہے، ہمارا پارٹی ہے، اور کانگریس پارٹی غریب کا پارٹی ہے۔ 40 سیٹ کانگریس پارٹی جیتنا ہے۔ جی تیار ہے؟ آپ تیار ہے؟ جتنے لوگ تیار ہے آپ تو کھڑے رہے، کتنے لوگ؟ سب لوگ تیار ہیں؟ کانگریس پارٹی کو جتائیں گے۔ حالیہ دنوں آصف آباد کے جنور میں پیش آئے فرقہ وارانہ واقعے سے متاثرہ علاقوں اور افراد میں راشن پیکیجز تقسیم و امداد کے لیے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر عادل آباد، اچنور، اچوڑا اور گڈی ہتنور میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تقریباً 500 راشن کٹ سے تقسیم کا منصوبہ بنایا گیا اور باضابطہ عادل آباد صدر مجلس نذیر احمد کی نگرانی میں محبان مجلس نے راشن کٹس پیکنگ کے کاموں کا باضابطہ آغاز کیا اور جنور پہنچ کر متاثرہ خاندانوں میں تقسیم بھی کر دیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار عادل آباد صدر مجلس نذیر احمد نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ نذیر احمد نے بتایا کہ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج بھی عنقریب جنور کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنور میں لا اینڈ آرڈر میں ناکامی پر ڈیوٹی پر موجود DSP کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ انہوں نے اضلاع آصف آباد، عادل آباد کے SP سے مزید امن کی بحالی اور اقلیتوں کے تحفظ میں اہم رول ادا کرنے کی گزارش کی۔ اس موقع پر عادل آباد، اچوڑا، اٹنور، گڈی ہتنور کے مجلسی صدور نذیر احمد، محمد جاوید، محمد زاہد کے علاوہ سماجی کارکن حافظ عارف خان، مجلس قائدین و کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پہ آج پارٹی آفس پر ریلیف جینور کے لیے تھوڑا بہت جو بن سکا ہمارے سے چاول، دال، تیل اور شکر، یہ ہر چیز کا انتظام کر کے اچوڑے کے لوگ بھی اور بڑے ہتنور کے اور اٹنور کے لوگ پورے مل کے ہم لوگ جینور جا کر وہ لوگوں سے یہ سامان بھی پہنچانا ہے اور ان کے حال چال بھی پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جعفر حسین معراج صاحب بھی جینور آتے بول کے وعدہ کرے اور DSP صاحب کا بھی وہاں پہ جینور کا DSP کے بھی تبادلہ ہو گیا، کیونکہ جو DSP صاحب جینور کے تھے ان کے رہتے پر ان کے وجہ سے پولیس رہنے پر بھی مسجدوں کے اندر اور مسلمانوں کے جائیدادوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کی وجہ سے آج 2 دن پہلے DSP صاحب کا تبادلہ کر دیا گیا۔ میری عادل آباد کے SP صاحب سے بھی اور
आसिफाबाद एसपी साहब से भी गुजारिश है कि जो अमन और सुकून से जो हमेशा जैनूर के अंदर हर जात के लोग मिल के रहते हैं, हमारी गुजारिश है कि वैसे ही रहना चाहिए और वो लोगों को भी वहाँ पर पुलिस जितने भी है और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त गणेशों का है, कुछ भी हो सकता है और हमारे जान और माल की इज्जत की आबरू की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है। मेरी आदिलाबाद एसपी और आसिफाबाद एसपी से गुजारिश है कि ये लोग स्पेशल टास्क फोर्स को डाल के वहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट से वहाँ पर रह के सही इंतज़ाम करें। अस्सलाम वालेकुम। बिजवाड़ा में एक बार फिर मूसलाधार बारिश हो रही जो अब ठीक हो रही है। भवानीपुरम, विद्यारापुरम, गोलापोड़ी, इब्राहिमपट्टनम, वन टाउन, गवर्नरपेट और लब्बीपेट, मकुलराजपुरम और पटामा और काशीलंका, कुन्नूर और दीगर मकामात पर मुसलसल बारिश हुई। इससे इमदादी सरगर्मियों में रुकावट पैदा हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस खान साहब हल्के के उम्मीदवार एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने खा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उनके हमरा मौलवी निसार और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर सैफुद्दीन भट्ट ने बीजेपी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इस पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में यहाँ एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, तो अब असेंबली इलेक्शन में क्या किया जाएगा। भट्ट ने कहा कि आर्टिकल 377 एनसी को यकीनी तौर पर बहाल किया जाएगा। की चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया। आप खुद देख रहे हैं कि सारे खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो खाक ब्लॉक है, सोखनाक ब्लॉक है, खान साहब ब्लॉक है, एक वेव एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और भट्ट साहब की, मेरी यानी कि मेरी। लोग चाहते हैं कि हम मौका दें किसी नौजवान आदमी को जिसमें उन्होंने मेरा नाम दर्ज किया अपने दिलों में। तो उन्होंने 40 साल हमारे अपोनेंटों को देखा है, तो आज वो एक चांस इंशाअल्लाह रहमान मुझे देना चाहते हैं, ताकि मैं क्या करूं इस कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के लिए, वो खुद इसका फिर मुशाहिदा करेंगे। तो खास क्या कुछ पढ़ा लिखा हूँ मैं, दूसरे लोगों की तरह अनपढ़ नहीं हूँ, तो मैं कोई ऐसी प्लानिंग इंशाअल्लाह रहमान लोगों से पूछ के इलाके में जाके हर किसी एरिया में अलग अलग अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तोसमादान साइड की अलग है, दूध पथरी साइड की अलग है, और दूसरे जो एरियाज़ हैं तो उनमें चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हो कायम करूँगा, चाहे टूरिज़्म को बढ़ावा देना होगा, बहुत सारे पीडीडी या बिजली में। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुमताज ताजर और की रहेजा ग्रुप के सदर रवि रहेजा ने उनकी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर मुलाकात की। रहेजा ग्रुप ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वज़ीर आला रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राहती प्रोग्रामों के तय फिराख्तली पर रहेजा का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना जन समिति पार्टी टीचर्स के सदर एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम, जिन्होंने गुज़िश्ता 4 दिनों से बासरा ट्रिपल आईटी में कई मुतालिबात के साथ तलबा के एहतजाज की हिमायत में जवाब दिया है। तलबा परेशान ना हो, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके मसाइल हल करने के लिए हम हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करेंगे। వాళ్ళే కొనసాగుతూ ఉండటం వల్ల ఆశించినటువంటి మార్పులన్నీ కూడా రాలేదు। అయితే మనం ఒక గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఐఐటి బాసరా అనేది తెలంగాణలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వ్యవస్థ। అది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నుంచి వస్తున్న మంచి విద్యార్థులకు అక్కడ నాణ్యమైన విద్య దొరుకుతున్నది। అట్లాంటి ఒక విద్యా సంస్థ ఎంత బాగా నడిస్తే రాష్ట్రానికి ఒక మంచి పేరు వస్తుంది। అదేవిధంగా ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న విద్యార్థులు కూడా ఒక మంచి భవిష్యత్తును పొందగలుగుతారు అని మేము కూడా చాలా గట్టిగా నమ్ముతా ఉన్నాం। అందుకని సమస్యల పరిష్కారం అయితే వీలైనంత వేగంగా జరగాలి। చాలామంది విద్యార్థులు మాకు కూడా ఫోన్ చేసిండ్రు, అక్కడ బాసర్లో ఉన్న పార్టీ నాయకులు వినోద్ గారితో కూడా మాట్లాడారు। ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాక మాట్లాడినాక మేము బాసర ఐఐటి విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారానికి గట్టిగా కృషి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం। వీలైనంత తొందరగా సమస్యలను పరిష్కరించి విద్యార్థులు తమ విద్య మీద దృష్టి పెట్టడానికి తగిన వాతావరణాన్ని ఏర్పరచాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాము।
తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాము. సమస్యలకు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి పరిష్కారాలను సాధిస్తామని విద్యార్థులకు హామీ ఇస్తూ మేము చేసే కృషికి మీ సహకారం కూడా అందించవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తూ తప్పకుండా న్యాయం చేకూర్చడానికి వ్యక్తిగతంగా నేను కానీ తెలంగాణ జనసమితి కానీ మీ వెంట ఉంటుందని హామీ ఇస్తూ సెలవు. జై తెలంగాణ. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदिलाबाद जिले सदर सैयद फयाज हाशमी ने इलेक्ट्रिक प्रेस क्लब में सहाफियों से बात करते हुए जनूर फिरका वाराना वाक़े पर आवाज बुलंद करते हुए वाक़े की सख्त मजम्मत की और हुकूमत व आसिफाबाद पुलिस की लापरवाही पर कई एक सवाल उठाए और इस वाक़े की सिटिंग जजों के जरिए तहकीकात का मुतालबा करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया को भी तफसीलात से वाकिफ करवाया। दिया गया यानी दुकानें जला दी गई, माल व असबाब लूट लिया गया। तो मैं ये कलेक्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि साहब और एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है मेरी, आसिफाबाद की और आदिलाबाद के साहब कार्डन सर्च अगर किया गया आज भी उन इलाकों में जहाँ से जो फिरका परस्त लोग आकर वहाँ फसाद करें तो आज पूरा माल बरामद हो सकता। ये अगर पुलिस कोशिश की तो ये जितने भी वहाँ पर फिरका परस्त आकर ये शर मचाए उनको अरेस्ट करने में आसानी होती। और रही बात हमारी हुकूमत से ये अपील करते हैं हम कि ये जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर। लिहाजा अमन का पैगाम देना चाहते हम जितने भी हिंदू दोस्त और जितने मुसलमान हैं इन सबको ये कहना चाहते हैं कि तुम अमन को बनाए रखो और जैनूर के अंदर कोई ऐसी अगर अफवाह उठती है तो वहाँ के ख़ास लोगों को आप अपनी इत्तला देते हुए अगर कोई जुर्म करता है तो जो कौम का है उसको पकड़ के उनके बड़े लोगों के हैंड ओवर कर देना चाहिए। मेवात हरियाणा के रहने वाले सुभान खान ने तेलंगाना के खम्मम में सैलाब की वजह से प्रकाश नगर ब्रिज पर फंसे 9 अफराद की जान बचाई थी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में सुभान खान से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की और मजलिस की जानिब से चेक जिसका अमाउंट 51,000 रुपए बताया गया है फराहम किया गया। साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सीएम और कलेक्टर खम्मम से सुभान खान को सीएम रिलीफ फंड के तहत इमदाद और 2 BHK हाउस अलॉट करने का मुतालबा किया। बता दें कि सुभान खान जिस्मानी तौर पर माजूर भी हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नायब सदर जगदीप धनखड़ की गोरखपुर में पहली आमद पर गोरखनाथ मंदिर में उन्हें शिवतार में होगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की मूर्ति और जिस्म के कपड़े पेश करके उनका खैर मकदम किया गया। इस मौके पर उन्हें मेहोगी गुरु श्री गोरखनाथ और महंत आयुर्वेद्यानाथ कौम परस्ती के खसूसी मुतलाशी और गीता प्रेस से शाये होने वाली किताबें पेश की गई। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने गणेश फेस्टिवल के दौरान हलाल प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की हिंदुओं से अपील की है। राजा सिंह जो एक तवील अरसे से हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ वकालत करते हैं, उन्होंने एक मर्तबा फिर हिंदुओं से अपील की कि वो इन अशिया की खरीदारी ना करें। राजा सिंह ने कहा है कि ऐसा इदारा जो हलाल प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट्स जारी करता है इन प्रोडक्ट्स को तैयार करने वाली कंपनियों से रकम वसूल करते हैं और ये रकम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाती है। राजा सिंह ने यह भी दावा किया कि हलाल प्रोडक्ट्स दहशतगर्द ग्रुप्स की बड़ी साजिश है ताकि हिंदुओं के त्योहारों के दौरान रकम बनाई जा सके। शहर हैदराबाद में गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं जो आज से शुरू होकर 17 सितंबर की आधी रात तक जारी रहेंगी। खैरताबाद में बड़े गणेश की तंसीब और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर विनायका मंडपम की वजह से ट्रैफिक की आमद व रफ्त को मुतासर होने से बचाने के लिए पुलिस ने ये इकदाम किए हैं। खैरताबाद गणेश के अतराफ और अहम सड़कों जैसे टैंक बंड, नेकलेस रोड और मिंट कंपाउंड में आम ट्रैफिक को महदूद कर दिया गया। खैरताबाद से राजीव गांधी मुजस्समा और मिंट कंपाउंड की तरफ गाड़ियों का दाखिला ममनू होगा, जबकि ओल्ड सैफाबाद पुलिस स्टेशन से खैरताबाद गणेश की तरफ जाने वाली सड़क भी बंद रहेगी। नेकलेस रोड और खैरताबाद फ्लाईओवर समेत कई मुकामात पर ट्रैफिक को दीगर रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया है, जबकि गणेश देखने आने वाले लोगों के लिए मखसूस पार्किंग मुकामात जैसे अंबेडकर स्क्वायर पार्किंग लॉट, एनटीआर गार्डन पार्किंग और सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल इहाते में पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। शहर में ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो इन पाबंदियों के पेश नजर मुतबादल रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म की तकलीफ से बचा जा सके।
چین میں یاگی طوفان نے شدید تباہی مچا دی ہے، جس سے ملک کے کئی علاقے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ سمندری طوفان کے باعث چین کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں غیر معمولی بارشیں، تیز ہوائیں اور سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ یاگی طوفان چین کے مشرقی ساحلوں سے ٹکرایا اور تیز ہواؤں کے ساتھ کئی علاقوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاص طور پر زیانگ، فوجیان اور شنگھائی جیسے بڑے صوبے طوفان سے بری طرح متاثر ہوئے۔ طوفان کی وجہ سے ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹے سے تجاوز کر گئی، جس نے کئی عمارتوں، درختوں اور بجلی کے کھمبوں کو نقصان پہنچایا۔ طوفان کی وجہ سے لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ کئی شہروں میں بجلی اور پانی کی فراہمی منقطع ہو چکی ہے، جبکہ ذرائع نقل و حمل بھی شدید متاثر ہوئے۔ ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ریل سروسز کو عارضی طور پر بند کیا گیا۔ سڑکوں پر پانی بھر جانے کی وجہ سے ٹریفک نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکومت نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور فوج کو بھی متاثرہ علاقوں میں تعینات کیا گیا اور ریسکیو ٹیمیں متاثرین کی مدد کے لیے مختلف علاقوں میں سرگرم ہیں، جبکہ زخمیوں کو اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا۔ طوفان کی وجہ سے زرعی شعبے کو بھی شدید نقصان پہنچا، کئی کھیت اور فصلیں تباہ ہو گئی، جس سے غذائی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ حکومت نے کسانوں کے نقصانات کا جائزہ لینے اور ان کی بحالی کے لیے ہنگامی پیکج کا اعلان کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔